बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our characteristics of sound, which were loudness, pitch, quality, and intensity of the sound. We have completed the derivation of the intensity level of the sound and derived the formula of how to calculate the intensity level of the unknown sound. I have told you about an important table on page number 25, table 11.1, in which different intensity levels of different instruments producing sounds are mentioned. Now, in this lecture, we are going to solve an example relating to the intensity level of the sound. Page number 25, example number 11.1. Calculate the intensity levels of the faintest audible sound. In part A, we have to calculate the intensity level of the faintest audible sound. And in part B, we have to calculate the intensity levels of rustling of leaves. ठीक है, इन दोनों की हमने इंटेंसिटी लेवल को कैलकुलेट करना है. इंटेंसिटीज हमें टेबल से गिवन है. जब भी आपको पेपर में एग्जांपल आएगी तो आप जो इंटेंसिटी होगी इन दोनों की, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी तो आपको पता है क्या होती है, 10⁻⁻12 वॉट पर स्क्वायर मीटर. और रस्लिंग ऑफ लीव्स की जो होती है वो है आपके पास, अगर टेबल में देखें, 10⁻11 वॉट पर मीटर स्क्वायर. सो इन दोनों की हमने क्या कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी लेवल. सो फ्रॉम द फॉर्मूला वी नो डेट intensity level of the faintest audible sound will be equal to, because we have to calculate the intensity level in decibel. So in decibels the formula will be 10 log लेंगे I divided by I naught. ठीक है. So where I is the intensity of the unknown sound or the intensity of the sound which we have to calculate, which is in this case faintest audible sound. I is the intensity of the faintest audible sound, and I naught is the reference intensity or the intensity of the faintest audible sound. So in this case, I is equal to I naught. In this case, I is equal to I naught because we have to calculate the intensity level of the faintest audible sound. So the intensity of the faintest audible sound is 10⁻⁻12 and I naught is also 10⁻⁻12 watt per square meter. So 10 log 10⁻⁻12 divided by 10⁻⁻12, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. आंसर आपके पास क्या आएगा, 1. And from the previous lecture I have told you that if in the calculator you take the log of 1, the answer will be 0. So log of 1, answer will be 0. 0 multiplied by 10, answer will be 0. So the intensity level of the faintest audible sound is 0 decibels, as mentioned in table 11.1 in the last column. So in part B, this is the part A. This is part A and this is part B. ठीक है? This is part A and this is part B. Now in part B, we have to calculate the intensity level of rustling of leaves. So intensity of rustling of leaves is 10⁻⁻11 watt per meter square. 10⁻⁻11 watt per meter square, as mentioned in the table 11.1. second last rustling of leaves में 10⁻⁻11. So 10 log I की जगह क्या आ जाएगा, 10⁻⁻11, and I naught, as we know that I naught is the intensity of the faintest audible sound. So I naught की जगह 10⁻⁻12. दोनों जो बेसिस हैं वो सेम है और डिवाइड हो रहे हैं. जब हमारे पास इस तरह का सिनेरियो हो कि दोनों बेसिस सेम हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हो x⁻2 डिवाइडेड बाय x³, ठीक है, तो जो पावर होती है वो ऊपर चली जाती है. बेस सेम होती है, पावर कहाँ आपके पास कहाँ आ जाती है, पावर ऊपर आ जाती है. ठीक है.
सो इट विल बिकम x रेज़ टू पावर -1 और इसको हम 1/x भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे 10, दोनों बेसिस सेम है, 10 पावर ऊपर चली जाएगी, -12 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +12, सो -11 + 12 आंसर विल बी 1 एंड द साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर विच इज पॉजिटिव, सो 10 raised to power 1 answer will be 10 and log 10 as in the previous lecture we have calculated that log 10 from the calculator answer will be 1, so the final answer will be 10 decibels, ठीक है। As you can see in the table 11.1 in the third column, rustling of leaves intensity level is 10 decibel. So if you have given with the value of intensity of the unknown sound, you can calculate the intensity level by putting the value of intensity in this equation and the I naught, which is the intensity of the faintest audible sound. So this is a very important example according to exam point of view. So आपने इसको बड़ी अच्छी तरह से देख लेना. Next, now we will move toward our next article, article 11.3, which is reflection of sound. In the previous chapter, in simple harmonic motion and wave motion, the last article of that chapter, we studied different properties and different phenomena related to wave motion. We discussed 3 different type of processes: reflection, refraction and diffraction of waves with the help of a ripple tank. So as we know that sound is also a type of wave. Sound is a mechanical wave. It requires some material medium for its propagation. So the phenomenon of reflection of sound will be there because sound is a form of wave. So what is reflection of sound wave? Let's look at its definition. When a sound is incident on a surface of a medium, जब sound किसी surface के साथ जाकर incident करेगी, क्यों incident करेगी? देखिए, जब हम बोलते हैं in the form of sound waves हमारी आवाज़ travel करती है, ठीक है। अब इस वक्त मैं यहाँ एक रूम में बोल रहा हूँ, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास ये डाइस है, वाइट बोर्ड है, यहाँ पर डिफरेंट जो हैं चेयर्स फॉर एग्जांपल पड़ी हुई हैं, दीवारें हैं, वॉल्स हैं, तो जाकर उनसे जब मेरी साउंड वेव्स निकलेंगी मेरे मुंह से, तब जाकर उन चीज़ों के साथ क्या करेगी, जाकर स्ट्राइक करेगी. सो व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ अ मीडियम, इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम. वो क्या होंगी, वो स्ट्राइक करेंगी उसके साथ और दोबारा क्या हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी. रिमेंबर इन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स वी हैव स्टडीड द सेम प्रोसेस कि क्या होता है, इंसिडेंट होती हैं वाटर वेव्स और दोबारा क्या आ जाती हैं, फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती हैं. सच दैट उसमें हमने एक लॉ भी पढ़ा था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, उसमें व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे with the normal is called the angle of incidence. Like if this is a medium and sound wave, this is the sound wave. So what is the angle of incidence? How to calculate the angle of incidence? I will draw the normal line at this point where the sound is incident on the surface of a medium. At this point, let's say this as point A. Okay, now we have to draw the normal or perpendicular line on that point. So from the help of a D, we can draw the normal line. So here is the D. The midpoint of the D will be at this point, and this is 0, this is 90, and this is 180. So this will be our normal line. And the angle which made by the incident ray, this is the incident ray, this is the incident ray. The angle made by this incident ray with the normal line will be the angle of incidence. ये बेसिकली मैं आपको डिवीजन करवा रहा हूँ. मैंने आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दिया था जब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स पढ़ा था, लेकिन रिवीजन के लिए मैंने आपको फिर बता दिया कि वो क्या होगा, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. जब साउंड वेव्स आकर इससे स्ट्राइक करेंगी तो दोबारा रिफ्लेक्ट कर जाएंगी बैक. ये उनकी रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन, ये उनकी इंसिडेंट की डायरेक्शन और ये रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन. सो रिफ्लेक्टेड रे, जो एंगल
रिफ्लेक्टेड रे आपके पास जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगी वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां से आप विजुलाइज कर सकते हो कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही हमें एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वी विल स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन द नेक्स्ट चैप्टर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। Now coming back towards our topic, which is reflection of sound. When a sound is incident on a surface of a medium, it bounces back into the first medium, just like that as shown in this figure. This phenomenon is called reflection of sound. Reflection of sound का एक और नाम भी है, reflection of sound को हम echo भी कहते हैं। रिमेंबर जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था ये चैप्टर, तब मैंने जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स थे उसमें बताया था कि हम एक फिनोमिनन को डिस्कस करेंगे जो कि इको का फिनोमिनन। ठीक है, ये जनरली आप डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व और विजुलाइज भी कर सकते हो। किस तरह ऑब्जर्व और विजुलाइज कर सकते हैं इसको हम आगे जाकर देखते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं अभी बता देता हूँ कि आप अगर तो आपके पास कोई छोटा कमरा या कोई छोटा एरिया है, वहां पर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ या इको जिसे हम कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको, वो इतने बेटर वे में आपको विजुलाइज या ऑब्जर्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप किसी बड़ी जगह पे हो, फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बड़े हॉल में हो, ठीक है, वहां जब आप बोलोगे, कोई भी आवाज आप प्रोड्यूस करोगे, फॉर एग्जांपल आप बोलते हो मैट्रिक, मैट्रिक जब बोलोगे तो कुछ सेकंड्स के बाद वो आवाज आप जो आवाज की जो साउंड वेव्स होंगी वो जाकर टकराएंगी हॉल की वॉल्स के साथ या जो भी वहां चीजें पड़ी हुई, और फिर वापस आपके कान में आकर क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, so there are some important points regarding reflection of sound. First we will see the definition. It is basically the short question. Define reflection of sound or define echo of sound. When a sound is incident on a surface of a medium, it bounces back into the first medium. This phenomenon is called echo or reflection of sound. First paragraph में क्या लिखा है, इसको रिफ्लेक्शन को हम उर्दू में बाज गश्त भी कहते हैं। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा बाज गश्त। When we clap or shout near a reflecting surface such as tall building or a mountain, we hear the same sound again a little later. इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाओ, पहाड़ी इलाकों में, और आप हाइकिंग कर रहे हो और आप टॉप पर पहुंच गए हो, काफ़ी चढ़ाई पर आप पहुंच गए हो, किसी माउंटेन पे जाकर आप क्या करो, आप क्लैप करो। जब आप क्लैप करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ सेकंड्स के बाद वो क्लैपिंग की जो साउंड थी वो आपके कानों में दोबारा आएगी, क्योंकि वहाँ पर जो बहुत सारी जो हैं ऐसी चीज़ें या ऐसे अब और भी काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स वहाँ प्रेजेंट होंगी, साउंड वेव्स क्या करेंगी, उन पर स्ट्राइक करेंगी और बाउंस बैक करेंगी टुवर्ड्स आवर ईयर वापस, तो इसलिए हमें वो साउंड सुनाई देगी। दिस फिनोमिनन इज बेसिकली कॉल्ड द इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रिसिस्ट्स का मतलब है रहती है, कंटेन रहती है हमारे ब्रेन में। कब तक? इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड्स। ठीक है, वो जो सेंसेशन होती है साउंड की या इको की, वो हमारे ब्रेन में, जो भी हम चीज़ बोलते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं, ठीक है, तो आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपनी आवाज़ सुनाई दे ना दे, लेकिन एज ए क्लियर आपको नहीं सुनाई देती। उसकी रीज़न क्या है? अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो टाइम इंटरवल होता है, द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड्स। 0.1 होता है 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा या 1 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये होता है 0.1 के इक्वल। तो 0.1 सेकेंड्स के इंटरवल में क्या रहता है, हमारी ब्रेन में वो साउंड की सेंसेशन रहती है। टू हेयर अ क्लियर इको, यहाँ भी मैंने लिखा है टू हेयर अ क्लियर इको। अगर तो हमने क्लियरली अपनी इको, अपनी जो रिफ्लेक्शन हो रही है साउंड की, उसको हमने हियर करना है, प्रॉपरली सुनना है, द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी 0.1 सेकेंड्स। कि जो टाइम इंटरवल है, यानी कि जितने टाइम, वो टाइम कितना होना चाहिए कि उस टाइम में मैंने जो बोला वो जाकर किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक किया, फॉर एग्जाम्पल किसी वॉल के साथ स्ट्राइक किया और वो वापस मेरे कानों पर आए। इन ओवरऑल ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो टाइम इंटरवल है वो 0.1 सेकेंड्स होना चाहिए, अगर तो आपने क्लियर इको को सुनना है अपनी। ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके ये वैल्यूज लाई गई, यहाँ पर मेंशन की गई। अब
आपको पता है साउंड जो है वो एक वेव है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। जनरली स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में है, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस या एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर में जो भी आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है उसकी वैल्यू है हमारे पास 340 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी बुक में भी मेंशन है। अगर आप देखें तो पेज नंबर 27 टेबल 11.2, इसमें गैसेस में मीडियम है आपके पास, उसमें गैसेस में एयर की 25 डिग्री सी पे 346 लिखी हुई है। यहाँ इस टॉपिक में उसने 340 ऑलमोस्ट, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन होती है जो है आपके पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके मुख्तलिफ वैल्यू आती हैं, फिर उनका एवरेज लेकर एक वैल्यू को मेंशन किया जाता है। सो 340 पर मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है एयर में। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड। द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर अ क्लियर इको शुड बी। अब हमें ये पता है कि 0.1 सेकेंड्स हमें टाइम मिनिमम चाहिए अपनी साउंड को दोबारा सुनने के लिए, ठीक है। तो 0.1 सेकेंड टाइम हो गया। वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम एयर में बोल रहे हैं, जो मीडियम है साउंड वेव्स जिनमें वो ट्रेवल कर रही हैं वो एयर है हमारे पास। सो एयर में स्पीड ऑफ साउंड है 340 मीटर पर सेकेंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्पीड विच इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम देखेंगे कि अगर ये तो हमें पता चल गया कि 0.1 सेकेंड्स का इंटरवल, टाइम इंटरवल होना चाहिए, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें जो ओवरऑल डिस्टेंस चाहिए या ओवरऑल कमरे की जो लेंथ है वो चाहिए, वो कितनी चाहिए कि हम अपनी इको को मेजर कर सकें। उसके लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमने निकालना है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि हम अपनी इको को क्लियरली क्या कर सकें, सुन सकें। सो S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T। वेलोसिटी कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना इंटरवल होना चाहिए मिनिमम 0.1। सो 340 इंटू 0.1, ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 34 मीटर्स। इसका मतलब ये है मिनिमम, कम से कम, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम 34 मीटर का जो है डिस्टेंस होना है, इनके 34 मीटर तक कोई हिंड्रेंस या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हो जहां से आपकी जो आवाज़ है वो जाकर रिफ्लेक्ट करे। अब जनरली अगर आप अपने घर में प्रेजेंट हो, घर में अगर एक कमरा है तो एक कमरा 34 मीटर्स का तो नहीं हो सकता अनटिल अनलेस के घर में कोई बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है। सो जो आमतौर पर यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस कमरे की जो मैक्सिमम होगी वो ये 3 मीटर का होगा या 4 या 5 मीटर का मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो होता क्या है, इतना टाइम ही नहीं मिलता उन वेव्स को कि वो जाएं, उससे रिफ्लेक्ट करें और दोबारा हमें अपनी आवाज़ सुनाई दे। जितनी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं लफ्ज़ बोलता हूँ मैट्रिक या मैं लफ्ज़ बोलता हूँ आओ। अब जितनी देर में मैंने आओ का अलिफ बोला उतनी देर में जाकर वो उससे रिफ्लेक्ट कर कर वापस भी आ गई, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है और वो टाइम उतना उससे मिल ही नहीं रहा कि वो रिफ्लेक्ट करे। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जब मैं आओ बोल रहा हूँ तो मुझे अपनी आवाज़ दोबारा ज़्यादा क्लियरली इसलिए नहीं सुनाई दे रही क्योंकि वो जब आओ मैं बोल रहा हूँ तो वो लफ्ज़ वहाँ से या साउंड वेव टकरा कर वो जो मैं बोल रहा हूँ उसी के साथ मिक्स हो रही है, तो मुझे वो मर्ज हो रही है, इस वजह से मुझे सही तरह क्लियरली दोबारा साउंड सुनाई नहीं दे रही। अच्छा, अब आप क्या करें, अब आप किसी बड़े हॉल में चले जाएं, ठीक है, बड़े हॉल में चले जाएं। ज़्यादातर आपको पता है हॉल्स खाली होते हैं या ज़्यादातर उनमें कुर्सियाँ होती हैं और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो मिनिमम डिस्टेंस है 34 मीटर, तो एक हॉल का तो ऑलमोस्ट होता होगा इतना डिस्टेंस। अब वहाँ जाकर आप बोलें आओ, ठीक है, जब आप वहाँ जाकर इस तरह बोलेंगे आओ तो क्या होगा, डिस्टेंस भी वो पूरा हो गया 34 मीटर और 0.1 सेकेंड्स के इंटरवल के बाद क्या होगा, आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देगी। क्या होगा, आपकी जो साउंड वेव्स निकलेंगी वो 34 मीटर का डिस्टेंस तय करके जब किसी हिंड्रेंस से जाकर स्ट्राइक करेंगी तो दोबारा आपके कान की तरफ आएंगे और आपको सुनाई देगी अपनी आवाज़, ठीक है। इसी तरह क्या होता था, जो ओल्ड टाइम्स में, पुराने ज़माने में ये होता था कि ज़्यादातर जो सफ़र होता था वो थ्रू डेजर्ट्स होता था, सहरा में ज़्यादातर होता था सफ़र। तो आपको पता है जो डेजर्ट होता है वो बिल्कुल खाली होता है, उसमें कोई दीवारें वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती भी है तो दरख्त बहुत दूर दूर होते। तो लोग जब सफ़र करते थे और जब आपस में बातें करते थे तो वो डर जाते थे। क्यों डर जाते थे, क्योंकि वो जब बोलते थे तो उनकी आवाज़ की साउंड वेव्स इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती थी, जाकर जब वो रिफ्लेक्ट कर किसी चीज़ से या दरख्त वगैरह से टकराती थी और वापस आती थी तो उन्हें कुछ सेकंड्स के बाद या 1 मिनट के बाद दोबारा अपनी आवाज़ सुनाई देती थी और वो डर जाते थे।
बेसिकली वहाँ ये फिनोमिना रिफ्लेक्शन और या इको का अप्लाई हो रहा होता था कि बहुत ज़्यादा 34 मीटर्स तो बहुत ही कम है, कोई 100 मीटर्स तक का डिस्टेंस, बल्कि उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाकर वो स्ट्राइक करती थी किसी चीज़ के साथ और दोबारा वापस आती थी। सो ये फिनोमिनन आपके पास है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। जनरली जो है हमें इतना क्लियर नहीं होता क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें एक कमरे में होती हैं कि इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है कि जो हम बोल रहे होते हैं और जो आवाज़ की साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं और हमें अपनी इको क्लियरली सुनाई नहीं देती। इसके बरक्स अगर हम किसी हॉल में या किसी बड़े से रूम में चले जाएं जिसका डिस्टेंस 34 मीटर मिनिमम हो, जो कि हमने कैलकुलेशन से निकाला है, वहाँ हमें अपनी इको या साउंड जो है वो क्लियरली सुनाई देगी। ठीक है, अब इसको रीड कर लेते हैं। द सेंसेशन ऑफ साउंड persists in our brain for about 0.1 seconds. To hear a clear echo, the time interval between our sound and the reflected sound must be at least 0.1 seconds. Important MCQs है, underline कर लें। If we consider the speed of sound to be 340 meter per second at a normal temperature in air, normal जो standard temperature होता है 25 degrees Celsius. In air, we will hear the echo after 0.1 seconds. The total distance covered by the sound from the point of generating या generation, कि जहाँ से वो produce हुई है या generate हुई है, उसके और जो reflection जहाँ से हुई है उसके दरम्यान minimum distance क्या होना चाहिए? The total distance covered by the sound from the point of generation to the reflecting surface and back should be at least 340 meter per second multiplied by 0.1, which is 34 meters. कि ये minimum distance होना चाहिए अगर तो हमने clear echo सुननी। Thus, for hearing distinct echoes, the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half of this distance. कि अगर तो हमने बहुत ज़्यादा जो है वो इको सुननी है, ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। कि अगर तो हमने जो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अपनी इको सुननी है, ठीक है, तो वो जो हम डिस्टेंस होगा जहाँ से साउंड जनरेट होगी और जहाँ से साउंड वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी, वो मिनिमम उस डिस्टेंस का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। ठीक है, मतलब 34 डिवाइडेड बाय 2, आंसर विल बी 17। ठीक है, 17 मीटर्स आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए। क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। थस फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल जहां से वो रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज 17 मीटर्स। Echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflections. ये भी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा मर्तबा अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई दे, क्योंकि जब आपने बोला ज़रूरी नहीं है वो एक दीवार के साथ जाकर टकराए, वो बहुत ज़्यादा दीवारों के साथ टकरा कर भी वापस आ सकती है। तो आपको मल्टीपल टाइम्स, बहुत ज़्यादा मर्तबा सक्सेसिव टाइम्स भी अपनी इको सुनाई दे सकती है। अब हम जाते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 26 की। अ ब्लू व्हेल्स 180 dB या डेसिबल रंबल इज द लाउडेस्ट एनिमल साउंड एवर रिकॉर्डेड। ब्लू व्हेल बेसिकली व्हेल मछली होती है और ये बहुत बड़ी मछली होती है, बहुत बड़े एनिमल है, मैमल है बेसिकली, ये बहुत बड़ा आपके पास एनिमल होता है। ये तकरीबन एक जहाज़ जितना होता है या उससे भी बड़ा होता है, इसीलिए वजह यह है कि बहुत कम जगह पाई जाती है। अब वो क्या कह रहा है कि इसकी जो इंटेंसिटी लेवल है वो है 180 डेसिबल्स। 180 डेसिबल। आप जरा पिछले पेज पर आए, पेज नंबर 25, इसमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी लेवल की जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है वो जेट एयरप्लेन है। और कभी आपने अगर एयरप्लेन में सफ़र किया, अगर आप एयरप्लेन के बाहर हो, ठीक है, और आप जब वो उड़ रहा हो उसकी आवाज़ सुने तो आपसे वहाँ पर रहा ना जाए, हो सकता है आपके कान के पर्दे भी डैमेज हो जाए। ठीक है, सो वो ये 150 डेसिबल हाईएस्ट है कि हमसे एयरप्लेन की भी बर्दाश्त नहीं हो सकती आवाज़। वो जो वेल, अब दोबारा उस पेज पर आए 26, जो ब्लू वेल है उसकी इससे भी ज़्यादा है, इसकी है 180 डेसिबल्स। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, वेल साउंड्स ऑल्सो अपीयर टू बी अ पार्ट ऑफ हाईली इवॉल्व कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम इनका हाईली इवॉल्व है। किस तरह वो हम देखते हैं। सम वेल्स आर थॉट टू कम्युनिकेट ओवर हंड्रेड्स एंड मे बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है और जो इनकी साउंड का इंटेंसिटी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो ये थाउजेंड्स, 100 to 1000 किलोमीटर्स तक इनकी आवाज़ क्या हो जाती है, 1000 to 100 किलोमीटर्स तक इनकी आवाज़ चली जाती है। ठीक है,
तो इस तरह ये जो आपस में अपनी कम्युनिटी में ये किस तरह आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ये इसी तरह करते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है. Some whales are thought to communicated over hundreds and maybe thousands of kilometers. This is possible in part because sound waves travels 5 times faster in water. ये हमारा नया नेक्स्ट टॉपिक है कि हम पढ़ेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में अलग स्पीड होती है, लिक्विड में अलग, और आपके पास जो गैसेस हैं उनमें अलग होती है. ठीक है, सबसे ज़्यादा साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड्स और फिर गैसेस. की क्या रीज़न है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. इस वक्त के लिए आप याद रखें कि जो साउंड की स्पीड है लिक्विड में वो 5 टाइम्स है देन इन एयर. एयर क्या है? गैस. वाटर में स्पीड ऑफ साउंड एयर से 5 टाइम्स ज़्यादा है. एयर की कितनी थी? 340. तो 340 को मल्टीप्लाई आप जब 5 से करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1700. ऑलमोस्ट 1700 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है वाटर में स्पीड ऑफ साउंड. तो एक तो स्पीड बड़ी जल्दी से ट्रैवल करती है साउंड वाटर में, और ऊपर से उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है. इस वजह से वो बहुत जल्दी आपस में क्या करती हैं, ब्लू वेल्स कम्युनिकेट करती हैं. अगर वो 100 से 1000 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर भी हो तो क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है और जल्दी से भी क्योंकि इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत वास्ट डिस्टेंस तक भी साउंड ट्रेवल कर जाती है और इस तरह वो आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. In addition, the temperature characteristics of ocean water decrease in temperature with depth. Ocean water में जैसे जैसे डेप्थ आपके पास होती है उसी तरह वाटर का टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है. क्रिएट अ यूनिक साउंड फिनोमिना. ठीक है, तो इस तरह वो आपस में ब्लू वेल्स या वेल मछली कम्युनिकेट करती है. नेक्स्ट, डू यू नो, देखें एलिफेंट्स, हाथी जो होते हैं, यूज लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. देयर लार्ज ईयर्स एनेबल देम टू डिटेक्ट these low frequency sound waves which have relatively long wavelengths. आपने एक वेव इक्वेशन पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. अगर तो फ्रीक्वेंसी वेव की कम हो जाएगी, अगर मैं लैम्डा को उधर ले जाऊं तो बन जाएगा v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज्यादा. वो ये कह रहा है कि जो एलिफेंट्स हैं उनके आपको पता है कान बहुत बड़े होते हैं, हमसे तो खैर बहुत बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोअर फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम भी नहीं सुन सकते क्योंकि हमारी लिमिट है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज. वो 20 हर्ट्ज से भी लो फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करते हैं साउंड वेव्स को, और क्योंकि उनके ईयर बहुत बड़े होते हैं, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो कम वेव जो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है उनकी कम हो जाती है. ठीक है, सो उनके ईयर का सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो लोअर फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स हैं उनको भी क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं. आपस में वो किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, जैसे उसका ब्लू वेल का बताया था, इसी तरह एलिफेंट्स अपनी कम्युनिटी में किस तरह करते हैं कम्युनिकेट, कि वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को जनरेट करते हैं और ईयर बड़े होने की वजह से वो उसको क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं. जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो आपके पास इजीली वो क्या कर सकते हैं, उसको हियर कर सकते हैं. ठीक है, सो अल्लाह ताला ने हर जो चीज़ है, हर जो आपके पास इंसान है, जानवर है, उसको हर एक को जो है उसके मुताबिक उनमें मतलब पैदा किया और उसके मुताबिक उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से है. ठीक है, सो एलिफेंट्स जो हैं आपके पास वो इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि उनके ईयर साइज बहुत बड़ा होता है, वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को जनरेट कर कर उसको डिटेक्ट कर लेते हैं. Elephants can effectively communicate in this way even when they are separated by many kilometers. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव को जनरेट करते हैं, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है. जब वेवलेंथ ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, एक कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकती हैं, वो साउंड वेव ट्रेवल कर सकती है. सो इस तरह एलिफेंट्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं. सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट topic, which is speed of sound. Now let's move towards the activity 11.3 on page number 26. Activity 11.3 क्या है, इसको पढ़ते हैं. Take two identical plastic pipes of a suitable length as shown in figure 11.10. नेक्स्ट पेज पे फिगर बनी हुई है 11.10. आपने क्या करना है, दो आइडेंटिकल पाइप्स लेने. आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम. सेम मतलब
क्या आपने उनकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए और उनका डायामीटर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो आपने 2 आइडेंटिकल पाइप्स लेने, प्लास्टिक के पाइप्स। अगर तो ये अवेलेबल नहीं है तो वो कह रहा है वी कैन मेक द पाइप्स यूजिंग चार्ट पेपर। ठीक है, चार्ट पेपर को काट कर उसके पाइप की शेप में आप बना सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, स्टेप 1 आप, अच्छा इसमें पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, एक टेबल है जो कि हमने वॉल के साथ जो है वो मतलब वॉल के साथ उसको रखा हुआ है, बिल्कुल वॉल के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद उस टेबल पर हम एक क्लॉक रखेंगे। ठीक है, जनरली जो अलार्म क्लॉक या जो भी क्लॉक, छोटी क्लॉक यूज़ होती है, ये आपके पास क्लॉक आ गई। उसके बाद आपने 2 पाइप्स लेने हैं, ये 2 पाइप्स आ गए आपके पास, और एक स्क्रीन लेनी है आपने। ठीक है, एक स्क्रीन लेनी है और उसे उन 2 पाइप्स के दरमियान आपने क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना। उसके बाद ये जो यहाँ पर बनाया हुआ है, ये बेसिकली ईयर, जो आप हैं जो लिसनर है। ठीक है, ये ईयर है। उसके बाद ये वॉल हो गई, ये टेबल हो गया। अरेंजमेंट सारी मैंने आपको बता दी। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट स्टेप है आपका, अरेंज द पाइप्स ऑन अ टेबल नियर अ वॉल। आपने क्या करना है, वॉल के साथ यानी कि वॉल के करीब आपने उन पाइप्स को कुछ इस तरह एंगल के साथ इन द आप टिल्टेड डायरेक्शन में या आप इंक्लाइंड जिसे आप कहते हो उस डायरेक्शन में आपने क्या कर लेना है, उनको प्लेस कर लेना। प्लेस अ क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ अ पाइप, open end of one of the pipes and try to hear the sound of the clock through the other pipe। अब करना क्या है, आपने जो एक एंड है उसका, एक एंड आपने ओपन रखना है और एक एंड जो है आपने उसका क्या रखना है, ये जो एंड है ये क्लोज रखना है। ठीक है, ये क्लोज होना चाहिए और एक एंड आपका क्या होना चाहिए, ओपन। जहाँ से ये ओपन होगा तो साउंड वेव्स इसमें से पास करेंगी, और ये अगर ये जो इसका दूसरा वाला ओपन रखना है, ये वाला ये ओपन होगा तो हम यहाँ से कान के ज़रिए उसको सुन सकते हैं। अब करना क्या है, आपने एक जगह पर एक ओपन एंड है पाइप का, वहाँ आपने क्लॉक रख लेनी है और उसकी साउंड जो टिक टिक आपको आवाज़ होती है क्लॉक की, वो आपने सुननी है दूसरे एंड से थ्रू योर ईयर। ठीक है, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द पाइप सो डैट यू कैन हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक क्लियरली। मतलब ऐसे उसको इस जगह पर सेट कर लेना, मतलब पाइप्स को थोड़ा सा खुद से उनकी इस तरह एडजस्टमेंट कर लेनी है कि आप उनकी जो क्लॉक की टिक टिक की साउंड है वो आपको दूसरे पाइप के जो ओपन एंड है वहाँ से क्लियरली सुनाई दे। ठीक है, उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो। नाउ मेजर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स। अब आपने क्या करना है, आपने मेजर करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। वो मेजर करने का बड़ा आसान तरीका है, जहाँ पर आपने स्क्रीन देखें प्लेस की हुई है। ठीक है, स्क्रीन का एक एंड जहाँ पर आपने प्लेस किया हुआ है उससे कितनी डायरेक्शन में आपने क्या किया हुआ है, उसको रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो ये है आपकी स्क्रीन। ठीक है, ये रखी हुई है आपने स्क्रीन इस तरह टिल्टेड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये है आपका पाइप। ठीक है, ये जो इनके दरमियान एंगल बन रहा है, ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये जो इनके दरमियान एंगल बन रहा है, अगर तो ये बिल्कुल मैं इस तरह रख दूं तो एंगल 0 हो जाएगा। अगर मैं इसे अपनी साइड पर ले जाता रहूं, ठीक है, ये स्क्रीन रखी हुई है मैंने, इस तरह एंगल बिल्कुल 0 है। अगर मैं इसे अपनी साइड पर लाता रहूं तो एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं उसे कोई टिल्ट कर रहा हूं या उसको कोई एंगल दे रहा हूं। तो इस तरह आपने अरेंजमेंट रखनी है कि ये बुक स्क्रीन को समझ लें और ये आपका पाइप है जिसको आपने उसको रखना है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट इस तरह कर लेनी है कि वो क्लियरली सुनाई दे, और जितना उसका एंगल होगा उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, और जितना एंगल दूसरे पाइप का होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आपके पास। ठीक है, तो दोबारा हम मूव करते हैं अपनी बुक की तरफ, आपका पेज नंबर 27। ठीक है, तो इस तरह की अरेंजमेंट करके आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन को मेजर कर लेना है। ठीक है, और उनकी वैल्यूज देखनी है वो सेम है या डिफरेंट है। सेम ही होंगी, क्योंकि सेम होगी तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अकर करेगा। लास्ट में वो कह रहे हैं लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकली टू अ स्मॉल हाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। ठीक है, कि अगर आप क्या करें, पाइप को राइट साइड पर वर्टिकली थोड़ा सा अप कर दें तो क्या होगा। अप करने से बेसिकली होगा ये कि रिफ्लेक्शन जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको आवाज़ थोड़ी ज़्यादा देर बाद सुनाई दे, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है जब आप ऊपर कर दोगे उसको पाइप को तो हो सकता है रिफ्लेक्शन थोड़ी देर बाद हो। सो ये आपके पास चेंजेस आ सकती हैं। अगर तो आप पाइप की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो सकता है।
ठीक है। सो ये एक एक्टिविटी थी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के फिनोमिनन को ऑब्जर्व करने की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है स्पीड ऑफ साउंड। अब आपको पता है साउंड जो है वो क्योंकि वो एक वेव है, और हमें पता है वेव के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं वेव स्पीड v, एक होता है वेव की फ्रीक्वेंसी f, और एक होता है उसकी वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, उसके अलावा और टाइम पीरियड भी होता है, एम्पलीट्यूड भी होता है वेव का। लेकिन मेन जो होते हैं जो हम फार्मूलाज में या न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं वो होती है वेव की स्पीड विच इज v, फ्रीक्वेंसी विच इज f, एंड लैम्डा विच इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब स्पीड ऑफ साउंड क्या है? स्पीड ऑफ साउंड आपके पास डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है। ठीक है, सॉलिड में डिफरेंट होती है, लिक्विड्स में डिफरेंट होती है, और जब एयर में हम बात करते हैं, गैसेस में बात करते हैं, उसमें डिफरेंट होती है। अब साउंड वेव्स हमें जैसे कि पता है रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन बिकॉज दे आर मैकेनिकल वेव्स। द मटेरियल में बी एयर, वाटर और एनी सॉलिड। कोई भी मटेरियल हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकती है, वाटर, मैटर की कोई भी स्टेट हो सकती है, एयर, वाटर और एनी सॉलिड। अच्छा, साउंड वेव जो साउंड होती है, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स। ये यहाँ पर मिट गया है क्योंकि हमने जो वहाँ पर बुक रखी थी। ठीक है, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स एंड गैसेस। साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर तीनों स्टेट्स की बात की जाए, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तो सबसे ज़्यादा फास्टर जो है साउंड ट्रेवल करती है सॉलिड्स में। क्यों सबसे ज़्यादा फास्टर जो है वो ट्रेवल करती है साउंड? इसलिए क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या था? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। आपने चैप्टर नंबर 7 9th क्लास में पढ़ा था कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस जो होता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं होती, वो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, आपने देखा था इस तरह का आपके पास सॉलिड का स्ट्रक्चर था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। ठीक है, सो होता क्या है, इन अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं सॉलिड में मॉलिक्यूल्स। तो साउंड क्या करती है? बहुत तेजी से इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या करती है? ट्रेवल करती है। ठीक है, साउंड बहुत तेजी से इनके दरमियान से ट्रेवल करती है, क्योंकि कोई स्पेस भी नहीं होती, इसलिए साउंड क्या करती है? बहुत तेजी से मॉलिक्यूल्स के दरमियान, क्योंकि एक रेगुलर पैटर्न में अटैच होते हैं, तो बहुत तेजी से क्या होती है? साउंड मूव करती है। सो सबसे ज्यादा फास्टर स्पीड से साउंड किस पे मूव करती है? सॉलिड्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिक्विड्स। इन लिक्विड्स साउंड ट्रेवल्स मोर फास्टर देन गैसेस बट लेस फास्टर देन इन सॉलिड्स। कि सॉलिड से तो कम ट्रेवल स्पीड से ट्रेवल करती है, लेकिन गैसेस से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करती है। सबसे ज्यादा सॉलिड्स, फिर लिक्विड्स। लिक्विड्स में आपको पता है कि लिक्विड्स में जो स्पेसेस होती हैं वो थोड़ी स्पेसेस से मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो सॉलिड की निस्बत लिक्विड में थोड़ी सी स्पीड साउंड की क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि स्पेसेस भी होती हैं बीच में। सो वहां से साउंड लॉस, या क्योंकि साउंड एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी लॉस होने का भी क्या होता है? थोड़ा सा खतरा होता है। इसलिए सॉलिड्स की निस्बत लिक्विड्स में साउंड की स्पीड कम होती है। तीसरी स्टेट पर अगर हम आए गैसेज में, तो गैसेज में तो बहुत ही स्लो ट्रेवल करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है गैसेज में बहुत लार्ज स्पेसेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स जो है होते हैं वो अरेंज होते हैं। अरेंज भी बल्कि नहीं होते, एक डिसऑर्डर्ड सा पैटर्न होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए टाइम लगता है साउंड को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, सो इसलिए जो है साउंड गैसेस में जो साउंड की स्पीड है वो सबसे कम है। सबसे ज्यादा किसमें? सॉलिड्स में, फिर है लिक्विड्स में, और फिर है गैसेस में। बता भी दिए क्योंकि सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न से और साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो साउंड जल्दी ट्रेवल कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज है स्पीड ऑफ साउंड जो डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द स्टेट पर। ठीक है, ये टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। अब आपको पता है जब भी अगर हम सॉलिड बॉडी की बात करते हैं, जब हम सॉलिड बॉडी को हीट करते हैं या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये सॉलिड है। ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है विद अ सोर्स, फॉर एग्जांपल इस तरह मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको हीट कर रहा हूं, तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस होती है। जब हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स, उस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, उनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट होती है और बहुत तेजी से स्टार्ट होती है।
क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो हम उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी को, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी ड्यू टू मोशन। हम उन सॉलिड्स को, जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, उनको मोशन में ले आते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को हम हीट के जरिए इंक्रीज कर देते हैं। सो वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है। और आपको पता है साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से ही, ठीक है। सो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी साउंड जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। सेम केस विद द प्रेशर। प्रेशर भी जब आप बढ़ाते हो, आपको पता है सी लेवल पर, एट सी लेवल जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर, उसे हम कहते हैं 1 atm, ठीक है। सी लेवल पर आपके पास साउंड जो होती है वो ज्यादा फास्टर ट्रेवल करती है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है एट हायर प्रेशर। इसकी बजाय अगर आप लोअर प्रेशर कर दो, फॉर एग्जांपल अगर आप पहाड़ों वगैरह पर चले जाओ, ठीक है, जहां पर प्रेशर आपके पास लो होता है, 1 एटमॉस्फेयर से लो होता है आपके पास प्रेशर, ठीक है, सी लेवल से कम प्रेशर होता है आपके पास, ठीक है, वहां पर साउंड जो है उसकी स्पीड कम होगी एज कंपेयर टू सी लेवल। सी लेवल पे सबसे ज्यादा प्रेशर है, इसलिए साउंड जो है वो ज्यादा तेजी से वहां पर ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू द हिली एरियाज और नॉर्दर्न एरियाज, जहां पर पहाड़ है, जहां पर प्रेशर थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास जो प्रेशर है वो कम हो जाता है और साउंड जो है वो इतनी तेजी से ट्रेवल नहीं करती। तो साउंड, प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाने से साउंड, स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स, टेबल नंबर 11.2 MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 27 पे, खास तौर पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 3 टेम्परेचर उसने दी हुई है, 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों तो आपने ज़रूर याद करनी है। इन तीनों की स्पीड क्या है? 0 पर है 331, 25 डिग्री पर है 346 और 100 डिग्री पर है 386। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो रही है। ये तीनों तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, इनको याद करना है, ये हर साल MCQs में आ जाते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये भी याद रखनी है। ये सारा टेबल आपने अच्छी तरह याद रखना है। सॉलिड्स में वुड है, एल्यूमिनियम है, ब्रास, निकल, आयरन। सबसे ज़्यादा जो अगर आप देखें स्पीड तो वो निकल में है 6040 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बल्कि उससे भी ज़्यादा एल्यूमिनियम में है 6420 मीटर पर सेकेंड, सबसे ज़्यादा इसमें है। उसके अलावा और भी फेंट ग्लास, स्टील, ये सारे आपके पास जो दीम है ये आपने याद रखनी है, ये आ जाते हैं पेपर में MCQ से, लाजमी आते हैं। ये टेबल 11.2 और लास्ट लेक्चर में जो मैंने पेज नंबर 25 पे टेबल 11.1 बताया था, ये दोनों टेबल्स MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इस आर्टिकल को रीड करते हैं। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट, ठीक है, ये अब चीज़ आपको पता है। दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, ये हमने एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया, जब हमने एक बेल जार के अंदर से वैक्यूम पंप की हेल्प से एयर को इवैक्यूएट कर दिया तो साउंड वेव्स प्रोड्यूस नहीं हुई। However, the nature of the medium will affect the speed of sound waves. कि मीडियम किस तरह का है, उसकी नेचर क्या है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है या वो गैस है, स्पीड ऑफ साउंड इसमें वेरी कर जाती है। In general, the speed of sound in a liquid is 5 times that in gases, ठीक है। जैसे हमने वो वेल फिश में भी देखा था कि स्पीड ऑफ साउंड वाटर में 5 टाइम्स है एज कंपेयर टू गैसेस, के 5 गुना ज्यादा है स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में देन दैट ऑफ गैसेस। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज अबाउट 15 टाइम्स दैट इन गैसेस, मतलब वो लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड 5 टाइम्स ग्रेटर है गैसेस में, सॉलिड में 15 टाइम्स ग्रेटर है गैसेस में, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड में कितनी हुई? 10 टाइम्स ज्यादा हुई, ठीक है। सो सॉलिड और गैसेस में आप देख सकते हैं 15 टाइम्स का डिफरेंस है, मतलब वेलोसिटी को 15, गैसेस में जो वेलोसिटी है उसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉलिड में वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, क्यों होती है वो भी रीजन मैंने आपको बता दी। इन जनरल द स्पीड ऑफ साउंड इन ये हो गया, द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज अबाउट 15 टाइम्स दैट इन गैसेस। The speed of sound in air is affected by changes in some physical conditions. Physical conditions such as temperature, pressure and humidity. ठीक है, humidity जिसको हम नमी कहते हैं हवा में, ठीक है, हवा में नमी को हम humidity कहते हैं कि कितना moisture content air में present है।
The speed of sound in air is 343 मीटर पर सेकेंड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन का आपका मतलब है कि स्टैंडर्ड प्रेशर यानी कि 1 atm और स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। किसी भी चीज़ को अगर हम स्टैंडर्ड फिजिकल कंडीशंस में मेजर करें तो उसका मतलब ये होता है हम 1 atm पर मेजर कर रहे हैं उसे एट सी लेवल, और टेम्परेचर या जिसे हम रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, विच इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है आपके पास, ये स्टैंडर्ड फिजिकल कंडीशंस है, ठीक है। इनमें आपको स्पीड ऑफ साउंड क्या है, 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 343 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ, लेकिन जनरली 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। 21 भी 20 से 25 तक लेते हैं। The speed varies with the temperature and humidity. The speed of sound in solids and liquid is faster than in air. Following relation can be used to find the speed of sound. अब आपको पता है साउंड जो है वो एक वेव है, और वेव एनर्जी, वेव फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ रिलेशन हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं, जो कि क्या था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो अगर हमने स्पीड ऑफ साउंड निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, विच इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेयर v इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव, f is its frequency and lambda is its wavelength, ठीक है। नेक्स्ट 11.2 में ये आपने खुद से कर लेनी है, आपको स्पीड और वेवलेंथ दे दी गई है, आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, f निकालना है तो लैम्डा डिवाइड हो जाएगा वहां जाकर, ठीक है। सो आपके पास आंसर आ रहा है 680 हर्ट्ज। सो यहाँ पर आपका ये आर्टिकल भी कंप्लीट हो गया। इसमें इस लेक्चर में जो वर्क फॉर डे 8 था और डे 7, इसमें आपको अगर कोई भी इशू हो तो आप you can contact us through a number which will be given to you at the end of this video through text message, voice message और through an image। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में उस क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए हमारे लेक्चर इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।